ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ. ಇವತ್ತು ಭದ್ರಬಾಹು ಭಟಾರರ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರತಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ 16 ಬಗೆಯ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ. ಆ 16 ಬಗೆಯ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಪ್ರತಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭದ್ರಬಾಹು ಭಟಾರರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಸ್ವಪ್ನಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಆತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭದ್ರಬಾಹು ಭಟಾರರು ಆ ಸ್ವಪ್ನಗಳ 16 ಬಗೆಯ ಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ಅವನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಕೋಡು ಮುರಿದದ್ದು, ವಿಮಾನ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದದ್ದು, ಚಂದ್ರ ಒಡೆದು ಹೋದದ್ದು, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾದದ್ದು, ನೀರಿಲ್ಲದ ತಾವರೆಯ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಂಡದ್ದು, ಸರೋವರವನ್ನು ಕಂಡದ್ದು, ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ತಾವರೆಯನ್ನು ಕಂಡದ್ದು, ಬಿಳಿ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ರಥಗಳ ಮೇಲೆ ಜನಗಳು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡದ್ದು, ಬಿಳಿ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಏರಿದ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಅರಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡದ್ದು, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ಅವನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಆ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ಫಲಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಭದ್ರಬಾಹು ಭಟಾರರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಭದ್ರಬಾಹು ಭಟಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ವಪ್ನ ಫಲಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿನ ಅವರು ಚರಿಗೆಗೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೊಟ್ಟಿಲ ಮಗು ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಬೊಳಾರ ಭಟಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 12 ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಬಾಹು ಭಟಾರರು ಸಂಪ್ರತಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ದಿನಗಳ ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ 12 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅನಂತರದ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಆ ದಿನದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನದ ಬದುಕಿಗೆ ನೇರವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಭದ್ರಬಾಹು ಭಟಾರರ ಆ ವಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಇತ್ತು, ಯಾವ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದುರಂತದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭದ್ರಬಾಹು ಭಟಾರರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ 105 ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ನಾವೀಗ ಕಲಿಯುಗದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। आज के स्वाध्याय में कली युग का वर्णन करने वाला एक प्रकरण आया जो 1000 वर्ष पूर्व
शिवकोटि आचार्य वड्डाराधने में लिख गए और वो जिस घटना का वर्णन कर रहे हैं वो घटना उनसे भी हजारों वर्ष पुरानी घटना है। जब संप्रति चंद्रगुप्त नाम के कोई सम्राट हुए थे, उनको रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वस्थ अवस्था में 16 स्वप्न दिखाई पड़े थे और वो अनिष्टकारी, अशुभ और आकुलता को उत्पन्न करने वाले स्वप्न थे। राजा को लगा कि कुछ अनर्थ होने वाला है, तो उन्होंने गुरु के पास जाकर के निवेदन किया और गुरु महाराज ने फलादेश किया उन स्वप्नों का। वो अपने निमित्त ज्ञानी थे ही, वो अवधि ज्ञानी भी थे, द्वादशांग के पाठी भी थे, इस पंचम काल के सबसे बड़े विद्वान आचार्य। उनके जो गुरु गोवर्धन आचार्य थे, गोवर्धन आचार्य के गुरु अपराजित आचार्य थे, अपराजित आचार्य के गुरु नंदीमित्र आचार्य थे और नंदीमित्र आचार्य के गुरु आचार्य विष्णु थे। तो ऐसे ये 5 महाज्ञानी गुरुजनों में से ये अंतिम गुरु थे जिनके मुख से उन स्वप्नों का फल आज अपन ने स्वाध्याय में जाना। और एक राजेंद्र कृष्णन नाम के काव्य लेखक हुए हैं, जिनको अंग्रेजी में लिरिसिस्ट कहते हैं, जिन्होंने बहुत से गीत आदि रचे हैं। उन्होंने एक हिंदी चलचित्र जिसका नाम गोपी था, उसमें भी एक गीत लिखा था जो संभवतः भारत के सभी संगीत प्रेमी श्रोता सुन चुके हैं। वो गीत इस प्रकार है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। हे सिए, इस तरह सीता जी को संबोधन करते हुए श्री राम कलयुग की अवस्था का वर्णन करते हैं। और जो गीत गाया है वो महेंद्र कपूर नाम के एक गायक ने उस गीत को गाया है। और संगीतकार का नाम जब स्मरण में आएगा तो बताएंगे। ये सब बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि साधु मार्ग में किसी बात को प्रस्तुत करते समय छुपाना एक दोष होता है। जैसे किसी और की वस्तु हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यदि हम उसका नाम नहीं लेते जिसकी वो वस्तु है, तो हम जनता में ये भ्रम उत्पन्न करते हैं कि ये वस्तु हमारी निजी वस्तु है, तो चोरी का दोष लगता है। इसलिए ये जानकारी हमने दी। गोपी नाम की एक मूवी थी, उसमें महेंद्र कपूर सिंगर ने ये गीत गाया है। राजेंद्र कृष्णन नाम के कवि ने वो शब्द रचना की है। तो उसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं, उस गीत को कभी आप सुनेंगे तो फिर एक अंदर कपकपी उत्पन्न हो जाती है कि ये इतना भयंकर काल है और इस काल में अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से अपन पैदा हो गए हैं। पर तो भी देखिए, इस काल का विवरण हजारों वर्ष पहले वो आचार्य कर गए थे। पहला स्वप्न जो देखा था संप्रति चंद्रगुप्त ने, वो था सूर्यास्त, जिसका फल उन्होंने बतलाया कि आज से भरत क्षेत्र में 14 पूर्वधारी एवं अवधि ज्ञानी मुनियों का अस्त होगा। यानी आज तक तो ये पाए जाएंगे, फिर इसके बाद से समाप्त हो जाएंगे। कल्प वृक्ष की शाखा भंग,
कल्पवृक्ष का शाखा भंग। आज के पश्चात कोई कुल बल विद्या विभव संपन्न मुकुटबद्ध सम्राट जैनेश्वरी दीक्षा नहीं लेगा। फिर तीसरा स्वप्न था देव विमान का भूमि स्पर्श से पूर्व ही प्रत्यावर्तन। देव विमान आकर के उतर रहा है, लेकिन उतरने से पहले धरती को छूने के पहले ही वापस लौट करके चला जाता है। तो आज के उपरांत देवलोक से वैमानिक देव और विद्याधर लोक से कोई विद्याधर यहाँ नहीं आएंगे। फिर चौथा स्वप्न था द्वादश फणा युक्त सर्प दर्शन। उसका फल था 12 वर्षीय भीकर दुर्भिक्ष पड़ेगा। फिर पांचवा स्वप्न था खंडित चंद्रमंडल। उसका फलादेश था सद्धर्म की अवनति होगी। लोग शक्ति होने पर भी यथाशक्ति का बहाना करके धर्म का आचरण करेंगे कि भाई मेरे में इतनी शक्ति, इसलिए मैं इतना ही करूंगा। छठे स्वप्न में 2 वन्य हाथी आपस में लड़ते भी हैं और पीछे हट जाते हैं। उसका फलादेश था अनभिलषित वर्षा होगी, अतिवृष्टि अनावृष्टि रहेगी। मंडल काल प्रमाण यह स्थिति रहेगी, अर्थात 12 वर्ष तक का ये फलादेश था कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ने वाला है, तो फिर बारिश ठीक से नहीं हुई। फिर सातवां स्वप्न था मत्स्य निर्जल स्थान पर छटपटा रही हैं, यानी मछलियां ऐसे किसी निर्जल स्थान पर इधर उधर हलचली कर रही हैं। तो उसमें फलादेश था आगम ज्ञान के अनुपात में आचरण नहीं रहेगा। फिर आठवां स्वप्न था जल शून्य सरोवर। आज के उपरांत भविष्य में तीर्थंकर और चक्रवर्ती कभी मध्य भारत में जन्म नहीं लेंगे। मध्य भारत का यश भी समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद ये बताया उन्होंने, एक गाथा है प्राकृत में, उवेण अंग विसवो दक्षिण दो जाव हुई कौसंबी, आवरेण जावदूण कुणाल विसवो उत्तर दो। ये प्राकृत गाथा है। तो इसका अभिप्राय ये है कि स्थान भी इधर उधर बदल जाएंगे। पूर्व से जो अंग विषय है, अंग देश है, वो दक्षिण की ओर होगा, और जाओ हुई कौसंबी अवरेण, कौशाम्बी जो है वो पश्चिम की ओर, और जावद कुणाल विसव ये उत्तर दो। कुणाल नाम का जो देश है वो उत्तर की ओर खिसके। ये थोड़ा सा स्पेस चेंजेस होंगे। फिर पंचम काल में मध्य प्रदेश की दुर्दशा होगी, ये भी लिखा हुआ है। फिर 9वें स्वप्न का वर्णन ऐसा है कि वन्य अग्नि का कृष्ण धूम्र आकाश की ओर उठ रहा है, यानी जंगल में आग लगी और काला काला धुआं आकाश की तरफ जा रहा है। तो उसका फल था अपराधों की वृद्धि होगी, दया भाव का ह्रास होगा, दुष्टों की बढ़ोतरी होगी, दुर्व्यसनी और पापियों का उत्थान होगा। 10वां स्वप्न था सिंहासन पर बंदर आकर के बैठ गया है, तो कुलीन जन राज्य प्राप्ति से वंचित रहेंगे, ये उसका अर्थ। फिर 11वें स्वप्न में था कुक्कुर यानी कुत्ता स्वर्ण पात्र में भोजन कर रहा है, तो उसका फल था अपात्र को गौरव प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। फिर 12वां स्वप्न था हाथी पर बंदर आरूढ़ हो गया है, तो उसका फल था कुलीन जन अर्थात योग्य लोग बेरोजगार रहेंगे और जो अयोग्य हैं उनकी सेवा करेंगे। फिर कचरे के ढेर में कमल उत्पन्न हुआ है, तो उसका फल था निम्न मानव सद्धर्म को स्वीकार करेंगे और कुलज धर्म से विमुख होंगे। फिर 14वां स्वप्न था समुद्र का मर्यादा तोड़ना। समुद्र मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है।
इसका फलादेश था सत्ताधारी लोग लोभ सीमा का उल्लंघन करेंगे और संपत्ति का संग्रह करेंगे। फिर 15वां स्वप्न था जन साधारण श्वेत गधों के रथ पर आरूढ़ होकर यात्रा कर रहे हैं। इसका फलादेश था महान नेतृत्व के धनी तीर्थंकर आदि महापुरुष के उपरांत अब लोभी और स्वार्थी साधु धर्म के रथ को खींचेंगे। फिर 16वां था राजकुमार और राजा दोनों घोड़ों पर सवार होने के बदले गधों पर सवार हो रहे हैं। तो उसका फल था विवाह संबंध विकृत होंगे, कुलजों का विवाह कुलहीनों में होगा और जाति संकरों की उत्पत्ति होगी। ये 16 स्वप्न थे। इसके बाद आचार्य भद्रबाहु शुद्ध केवली कहते हैं अनृत वचने नित्याभ्यास खलेषु विदधता गुणवती जने वैरा बुद्धि खलेष्वति गौरवम यशिषु नियतम वाक्पौरुषम विपत्तिषु चक्रिया कलियुग महाराजस्यैतानि राज विभूतयः। कलियुग के जो बड़े बड़े राजा होंगे उनकी विभूतियां ये होंगी, झूठ बोलने में निरंतर अभ्यास रहेगा उनकी प्रजा का, दुष्ट लोग विद्वान बनेंगे और गुणी जनों के प्रति लोगों को दुश्मनी रहेगी और दुष्टों का सम्मान और गौरव होगा। और वचनों में कठोरता रहेगी, कड़वे वचन और फिर कठोर वचन अधिक बोले जाएंगे इस काल में। और क्रियाएं ऐसी की जाएंगी कि मनुष्य विपत्ति में पड़ जाए, ऐसे काम करेंगे कि विपत्ति आएंगी। ये कलयुग के राजाओं की अवस्था रहेगी कि उन राजाओं का ये वैभव होगा कि वैभव में ये सारी विसंगतियां पाई जाएंगी। काले संप्रतिवर्तते कलियुगे सत्यानरा दुर्लभा नाना चौर गणा मुशन्ति पृथिवीर मार्यो जन क्षीयते देवाश्च प्रलयं गताः करभवल लौल्यं गताः पार्थिवाः पुत्रस्यापि न विश्वसन्ति पितरः कष्टं युगं वर्तते। शार्दूल विक्रीडित छंद, वो पहला हरिणी छंद था। आचार्य कहते हैं संप्रति कलियुगे काले वर्तते, इस समय कलयुग नाम का काल वर्तमान है। तो इसके वर्तमान होने पर सत्या नरा दुर्लभा, सच्चे मनुष्य दुर्लभ हो गए हैं। इस पृथ्वी को अनेक प्रकार के चोरों के समूह लूट रहे हैं और गुणीजनों की संगति करने वाले और स्वयं गुणों को धारण करने वाले मनुष्य नष्ट हो रहे हैं। देवलोग तो कब के चले गए, यहाँ पर अब वैमानिक देवों का, स्वर्ग में निवास करने वाले कल्पवासी देवों का आगमन विच्छिन्न हो चुका है। और करवल लौल्यंगता पार्थिवा, जैसे हाथी हथनी के लोम में गड्ढे में गिर जाता है, वहाँ पर सामने एक हथनी बांधी जाती है, हाथी उसके लोम में वहाँ पर आता है, लेकिन वो सामने देखता है घास फूस से ढका हुआ गड्ढा होता है, वो उस संकट को नहीं देख पाता, उसके लोभ में गड्ढे में चला जाता है। वैसी स्थिति राजाओं की हो गई है। और माता पिता पुत्र पर विश्वास नहीं करते, पता नहीं ये कल क्या कर डाले। तो ऐसा कष्ट इस युग में बरत रहा है। फिर कहते हैं कि ये पृथ्वी शक्तिहीन हो गई है और इसमें जो औषध के पौधे उगते थे वो पृथ्वी के कारण अल्प शक्ति वाले हो गए।
यानी औषधों की जो पहले शक्तियां थी वो आज घट गई है, और जो हल्के लोग हैं वो महान कहलाने लगे हैं, वो महत्व को प्राप्त हो गए, बड़प्पन को प्राप्त हो गए हैं। राजा लोग जो हैं वो पैसे की अधिक चिंता कर रहे हैं, प्रजा की चिंता कम कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो मंत्री आदि हैं वो जो मिथ्या धर्म है, वास्तविक धर्म नहीं है, उस धर्म में लग गए हैं। ब्राह्मण लोग विकृत कार्यों में स्थिर हो गए हैं। पत्नी पति के प्रति समर्पित नहीं रही, पुत्र पिता से नफरत करने लगे हैं। तो ऐसे कलयुग के समुपस्थित होने पर वे लोग धन्य हैं जो सच्चे साधु बन गए हैं। वे लोग धन्य हैं। वनम प्रस्थिता, वनवासी साधु के मार्ग में जो प्रस्थान कर गए हैं, वे लोग धन्य हैं। इस तरह ये कलयुग का वर्णन किया था। अब इस वर्णन को सुन करके किसी की बुद्धि में ये विचार आ सकता है कि जब ऐसा हो ही रहा है तो फिर अपन भी उस धारा में है, क्या बिगड़ रहा है, जो है सो है। जब इतने बड़े गुरु कह गए हैं कि ऐसा होगा तो फिर अपन भी उसी धारा में, क्या गलत है। पर एक बात समझने की है, आज और भी एक चर्चा निकली थी, रूल्स हैव एक्सेप्शंस। नियम में कुछ अपवाद होते हैं। और संस्कृत भद्रबाहु चरित्र में प्रायण शब्द लिखा है। प्रायण का अर्थ होता है कि प्रायः करके ये स्थिति बनेगी इस कलयुग में। प्रायः करके बनेगी, इसका अर्थ ये हुआ सर्वथा नहीं बनेगी। तो सर्वथा नहीं बनेगी, इस बात को वो लोग अपना सकते हैं जो सन्मार्ग को पसंद करते हैं, और प्रायः बनेगी, इस बात को वो लोग अपना सकते हैं जो दुर्बल मन वाले हैं और पतन को पसंद करते हैं। तो एक्सेप्शंस के लिए एक अंग्रेजी कहावत थी जो प्रोफेसर साहब ने सुनाई थी, ए बॉल गेट्स रीबाउंडेड व्हेन थ्रोन एट अ बॉल। एक गेंद है, उसको आप दीवार पर फेंको तो वो वापस बाउंस होकर के इस तरफ आती है। ये एक नियम है, बट नॉट ए च्युइंगम। लेकिन च्युइंगम को फेंकोगे दीवार पर तो वो वापस नहीं आएगा, वो चिपक जाएगा। तो हर नियम में कुछ अपवाद होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आज ये कलयुग का वर्णन सुन करके अपन क्यों न प्रकाश के अभिमुख हो। अंधकार के अभिमुख जिनको होना है वो तो हो ही रहे हैं और होंगे। विवेकी जन प्रकाश के अभिमुख हो, केवल इतना ही इसका सार है। जैनम जयतु शासन। ಭದ್ರಬಾಹು ಭಟಾರರು ಯಾವ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿತ್ತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರೇನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕ, ಅದು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿವರಣೆ ಇದು. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ದಾಖಲು ಮಾಡಿವೆ. ಆ ಏನು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಡ್ಡಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ಬಗೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರೂಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹೇಗೋ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಅಂಶ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರವಾಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಕೊಳೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈಜುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಜೀವಂತ ಮತ್ಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಜೀವಂತ ಮತ್ಸ್ಯಗಳಾಗೋಣ. ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈಜುವ ಒಂದು ಸಾಹಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಚ್ಯುತವಾಗುವ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಚ್ಯುತವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ಜಿನಶಾಸನಂ.